بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں بھی وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اماں گھر پر نہیں تھی، وہ پڑوس میں کسی عورت کے پاس گئی تھی۔ پھر میں نے دروازہ کھولے بنا باہر آواز لگا کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب میں باہر ایک مردانہ بھاری آواز ابھری، جی میں کرائے کا ایک گھر ڈھونڈ رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کا گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ وہ شاید کوئی کرایہ دار تھا جو گھر کی تلاش میں ہمارے گھر تک آ پہنچا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی کیونکہ ہمارا گھر 3 مہینے سے خالی تھا۔ آخر کار ایک کرایہ دار آ ہی گیا۔ میں نے فوراً کھنٹی پر ٹنگی ہوئی چابیاں ہاتھ میں باہر نکال کر اس شخص کے حوالے کی اور اس سے کہنے لگی کہ جی اوپر والی منزل کرائے پر خالی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے چابیاں تھامیں، لیکن اس کا ہاتھ ذرا سا میرے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی جلتے انگارے نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے فوراً دروازہ بند کر لیا، لیکن پھر میں دھک سے رہ گئی اور سوچنے لگی کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈکیت نہ ہو جس نے مجھ سے جھوٹ بول کر چابیاں لی ہوں۔ لیکن خیر، اوپر والے گھر میں کون سا خالی خزانہ چھپا تھا جس سے وہ چور چوری کر کے لے جاتا؟ ویسے بھی ہم 2 غریب ماں بیٹی کے پاس تھا ہی کیا چوری کرنے کے لیے جو کسی چور نے یہاں کر ڈکیتی کرنی تھی۔ ہمارا گھر علاقے کی اس جگہ پر واقع تھا جہاں پر قبرستان تھا۔ عجیب وحشت اور سناٹا ہمارے نصیب میں تھا کیونکہ وہ قبرستان انتہائی بھاری اور عصیب زدہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں رات میں روحیں چلتی پھرتی اور گھومتی نظر آتی ہیں، جبکہ سالوں پرانے درختوں پر تو جنات کا بسیرا بھی ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو تو خوفزدہ کر سکتی تھی لیکن ہمیں نہیں، کیونکہ ابو کے مرنے کے بعد ابو کی وراثت میں ہمیں یہ گھر ملا تھا۔ پہلے تو اس گھر کی صرف 1 منزل ہی بنی تھی، لیکن چونکہ ابو کے انتقال کے بعد ہمارا کوئی کمانے والا نہ رہا، اس لیے لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک اوپر کی منزل ڈال کر اسے کرائے پر چڑھا دیا جائے تاکہ ایک مناسب آمدنی کا بندوبست ہو جائے۔ امی نے اپنے تھوڑے سے زیورات بیچے اور اوپر کی منزل پر کمرہ بنا کر چھوٹا سا کچن اور واش روم بھی بنا دیا۔ اب ایک کمرہ اور قبرستان کے پاس گھر ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کرایہ دار ہمارے اوپر والے گھر میں ٹکتے ہی نہ تھے۔ ویسے بھی یہ حقیقت تھی کہ رات کے وقت قبرستان سے عجیب عجیب آوازیں آیا کرتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ بہت سارے جنات اچھل کود کر رہے ہوں، تو کبھی لگتا کہ کوئی سفید لباس میں روحیں ہنستی کہہ کے لگاتی اور رونے والی آوازیں نکال کر پھرتی ہوئی نظر آتی۔ ہمارا گھر بالکل ہی گلی کے کونے پر واقع تھا جہاں سے قبرستان صاف نظر آتا۔ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کرایہ دار مل جائے جو عرصے تک یہیں پر ٹکا رہے تاکہ ہمارے آلات کرایہ نہ آنے کی وجہ سے خراب نہ ہوں۔ ویسے بھی ہمارا گزارا اس گھر کے آنے والے کرائے سے ہوتا۔ ابو فروٹ کا ٹھیلا لگاتے، اس ٹھیلے سے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا۔ اس وقت میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب ایک انجان مسافر کو سڑک پر چلتی گاڑی سے بچاتے ہوئے وہ خود ایک ٹرک کے نیچے آ گئے۔ وہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ابو کا چند منٹ میں انتقال ہو گیا۔ ابھی تو میں نے صحیح سے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی کہ مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گئی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میری زندگی تو باہر اس سے پرنور ہوگی کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کے مرنے کے بعد ہم پر فاقوں کی نوبت آئے گی۔ اب اماں اور میں دن رات پریشان رہنے لگے کیونکہ جب اماں عدت میں بیٹھ گئی تو گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے مجبوراً تعلیم چھوڑ دی اور ساتھ والی پڑوسن باجی سے سلائی کا کام سیکھنے لگی۔ ابھی میری عمر 16 سال تھی، لیکن پھر بھی میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ گھر کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ابو کے مرنے کے بعد ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ اماں نے اپنی شادی کے جو قیمتی زیورات میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے آخرکار وہ بھی اوپر والی منزل کے لیے بیچ دیے۔ اماں کبھی کبھی یہ بات سوچ کر اداس ہوتی کہ میری اکلوتی بیٹی کے نصیب اتنے برے ہیں کہ وہ اتنی سی عمر میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے پر مجبور ہے۔ تو میں اماں کو سمجھاتی کہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اسی لیے کبھی نہ کبھی ہمارے حالات بھی بدل ہی جائیں گے۔ اوپر سے ہماری قسمت پھوٹی تھی کہ ہمارا گھر قبرستان کے پاس ہونے کی وجہ سے
ज़्यादा तर किराएदार यहाँ आना पसंद ही ना करते, और अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मोहल्ले या पड़ोस के लोग ही उन्हें पहले से डरा देते कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान वाक़ई है वो इंतहाई खौफनाक और आसेब ज़दा है। यूँ बच्चों वाली फैमिली तो हमारे किराएदार बनकर हरगिज़ ना आते, लेकिन कभी कभी कोई मर्द हजरात ज़रूर किराए पर आकर रहने लग जाता, लेकिन वो भी चंद दिन रहने के बाद खुद ही मकान खाली करके चला जाता। जब मैं सिलाई सीख रही थी तो मुझे सिलाई सिखाने वाली समीना बाजी ने मशवरा दिया कि तुम अपनी तालीम अधूरी हरगिज़ न छोड़ो, बल्कि प्राइवेट मैट्रिक या इंटर कर लो, ताकि तुम्हें ज़माने के साथ चलने में कोई परेशानी ना हो। वो अक्सर ही मेरी हौसला अफजाई करती, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हुई कि मैंने दोबारा पढ़ाई का आगाज़ कर दिया, और गुज़रते सालों के साथ अब मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी। अम्मा बेचारी अब्बू के गम में पहले ही वक्त से बूढ़ी हो गई, लेकिन मैं उनका दिल बहलाने के लिए उनसे कहती कि आप पड़ोस की औरतों के पास जाकर बैठा करें ताकि किसी भी परेशानी या जहनी अजियत का सामना आपको ना करना पड़े। मुझे हैरत होती कि पता नहीं लोगों को इतना खौफ क्यों आता है यहाँ पर रहने से, हालांकि मेरे साथ तो आज तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ था और ना ही मुझे कुछ कभी कब्रिस्तान में नज़र आया था। आज भी अम्मा पड़ोस में किसी औरत से मिलने गई थी, जब भी वो शख्स किराएदार बनकर दरवाजे पर आया। फिर मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद अम्मा भी घर पर आ गई। फिर मैं खुशी खुशी अम्मा को बताने लगी कि मुबारक हो, हमारी ऊपर वाली मंजिल पर किराएदार आ गया है, जिसकी चाबियां मैंने उसे दे दी हैं और अब वो घर देख रहा है। अम्मा भी सुनकर खुश थी। फिर वो कहने लगी कि अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ कि उसे घर पसंद आया है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा खुशी खुशी अपना चेहरा लिए दोबारा नीचे आई। वो मुझे बता रही थी कि किराएदार को हमारा घर बहुत पसंद आया है और उसे ये भी मसला नहीं है कि वो घर कब्रिस्तान के बराबर में है। वो चूँकि कमाने के लिए इस शहर में आया, इसीलिए अकेला ही ऊपर की मंजिल पर रहेगा। मुझे उसके अकेला रहने से कोई सरोकार नहीं था, बस मैं चाहती थी कि वो मुनासिब किराया दे और वक्त पर हमें किराया मांगने से पहले ही किराया दे, क्योंकि हम दो औरतें अकेली थी और किसी ऐसे मर्द को किराए पर नहीं रख सकती थी जो झगड़ालू तबीयत का हो और उसकी नीयत में कुछ खोट हो। फिर मैं अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, आप अच्छी तरह देखभाल कर उस शख्स को रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो एक बुरा इंसान हो और किसी खराब नीयत से हम माँ बेटी को तनहा देखकर यहाँ आया हो। अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं, बातचीत करके तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस लड़के की आदत खराब है या उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। वो बड़ी तमीज़ से और नज़रें झुकाकर मुझसे बात कर रहा था। ये सुनकर मैं कुछ मुतमईन हो गई। फिर अम्मा कहने लगी कि अच्छा है, कल ही उसका शिफ्ट होने का इरादा है और उसने कहा है कि वो किराया भी कल ही दे देगा। ये बात सुनकर मुझे दिली खुशी हुई थी, क्योंकि किचन में सारा राशन ख़त्म हो चुका था और वो किराएदार हमें कल किराया दे देता तो मुनासिब खाने पीने का सामान अपने किचन में हम डलवा लेते। फिर दूसरे दिन जब वो अपना सामान लेकर आया तो मैंने दरवाजे की छुरियों से उसे ऊपर जाते देखा। मैं हैरान थी कि उसके पास सिवाय एक बैग के कुछ भी नहीं था। फिर मैं मायूस होकर सोचने लगी कि इसका मतलब है ये किराएदार भी सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ आकर रुका है। फिर वो दरवाज़ा बजाने लगा। अम्मा जो सालन बना रही थी वो मुझे कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो, जाकर देखो कि कौन है दरवाजे पर। मैं अम्मा को कहने लगी कि ज़रूर वो किराएदार होगा, इसलिए आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर अम्मा ने मुझे सालन भूनने का कहा और ख़ुद दरवाज़ा खोलने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजे से वापस आई। उनकी मुट्ठी में हज़ारों रुपए दबे थे। मैं इतने पैसे देखकर अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, आपने उसको इतना ज़्यादा किराए पर क्यों रखा है? तो अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तो उसे मुनासिब किराया ही बताया था जो हम हर किराएदार को बताते हैं, लेकिन उसने खुद ही कहा है कि खाला जान, आप चूँकि एक बेवा औरत हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा किराया दूंगा। मैं हैरान थी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा नेक किराएदार आया था जो हमें इतना ज़्यादा किराया दे रहा था, वरना तो हर किराएदार ही आकर अम्मा से बहस करता कि इतना छोटा सा घर है, हम इतना किराया नहीं देंगे। फिर अम्मा ने उन 1000 रुपयों में से चंद पैसे मुझे थमाए और कहा कि संभाल कर रख देना। फिर खुद ही कहने लगी कि
अच्छा तुम घर पर रहो, मैं इन पैसों से राशन लेने जा रही हूँ। फिर अम्मा राशन लेने चली गई और मैंने पीछे से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया। सालन बनाने के बाद अभी मैं मशीन पर बैठकर कपड़े सिलाई करने का सोच ही रही थी कि दरवाज़ा बजने लगा। मैं सोचने लगी कि अम्मा तो राशन लेने के लिए शहर गई है, उसका इतनी जल्दी वापस आना मुमकिन नहीं है। फिर कौन होगा दरवाजे पर? फिर जैसे ही मैं दरवाजे के पास गई तो बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज़ ऊपर आई, जो यकीनन उस किराएदार की थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो मुझे कहने लगा कि मैं अपना बिस्तर साथ नहीं लाया हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई इजाफी बिस्तर है तो मेहरबानी करके मुझे दीजिए, वरना मुझे इतनी ठंड में नीचे फर्श पर ही सोना पड़ेगा। मैं उस किराएदार की इतनी बेतकल्लुफी पर हैरान थी। फिर उससे कहने लगी कि अच्छा ठीक है, जैसे ही अम्मा वापस आएंगी तो मैं उन्हें कह दूंगी कि वो आपको ऊपर बिस्तर देकर चली जाएंगी। फिर वो किराएदार कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हैरान थी कि यहाँ पर रहने के लिए आ गया है, लेकिन अपना इतना सामान भी नहीं लाया कि रात को सुकून से बिस्तर पर सो सकता। फिर अम्मा ने अपने संदूक में से खूबसूरत और नया बिस्तर निकालकर उस किराएदार को दिया। मैं अम्मा को कहने लगी कि क्या ज़रूरत है आपको उसे नया बिस्तर देने की, वो भला कौन सा हमारा कोई रिश्तेदार या मेहमान थोड़ी है। तो अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो किराएदार है, लेकिन जब तक इस घर में रह रहे हमारा मेहमान ही है, एक न एक दिन तो उसने चले ही जाना है। वैसे भी अम्मा का दिल बड़ा ही हमदर्दी से भरा हुआ था, वो हर किसी के लिए इतनी हमदर्दी से सोचती। फिर जब वो उस किराएदार को बिस्तर देकर नीचे आई तो मुझे कहने लगी कि मैंने उससे कह दिया है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से खाने की, हम दोनों माँ बेटी अपने लिए घर में सालन और रोटी बनाते हैं, तुम्हारे लिए भी बना दिया करेंगे। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि जब भी उसने होशियारी में आकर हमें किराया ज़्यादा दिया है ताकि खाने पीने का बंदोबस्त भी यहीं से हो जाए। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि वाह भाई, मेरी बेटी का दिमाग तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। फिर मैं सर झटक कर सिलाई मशीन पर पड़ा हुआ सूट सिलाई करने लगी। एक दिन मैं समीना बाजी से किसी कमीज़ का पूछने गई तो वापसी पर आते हुए मैंने अपने घर के पास खड़े एक शख्स को पाया। मैं समझ गई थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा किराएदार ही था, जो काले कपड़ों में मलबूस दरवाजे के पास खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान थी क्योंकि वो एक इंतहाई वजीह शख्स था। उसकी शख्सियत में ऐसा कुछ था जिसने मुझे उसे देखने पर मजबूर कर दिया। मैं मुकम्मल नकाब में थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी नज़रें झुकाए चलती मैं घर के अंदर घुस गई। मैं अंदर आकर सोचने लगी कि वो मुझे इतने गौर से क्यों देख रहा था। उसकी नज़रों का मतलब मैं समझ नहीं सकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया। मैं आधी रात के वक्त पानी पीने की गर्ज से उठी जब मैंने उस घर की खिड़की को खुला हुआ पाया। वो खिड़की सीधा कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी और उस खिड़की में से अगर देखते तो नजरें सीधी उस कब्रिस्तान पर जाती। मैं और अम्मा कभी वो खिड़की खुली नहीं छोड़ते थे, आज न जाने कैसे वो खुली रह गई। तभी मैंने जल्दी से वो खिड़की बंद करना चाही, लेकिन जैसे ही मैं उस खिड़की के पास गई तो मैंने देखा काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स उस कब्रिस्तान में खड़ा था। फिर मेरे जहन में आया कि ऐसा लिबास तो उसी किराएदार ने पहना था और कद काट से भी मुझे वही लग रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि हैरत की बात है, ये आधी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। फिर मैं उस पर नज़र जमा कर देखने लगी कि आखिर वो क्या करना चाहता है। धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ आलती पालती मारकर दोनों हाथ ज़मीन पर रखे और कुछ पढ़ने लगा। वो आंखें बंद करके ना जाने क्या कर रहा था, मैं कुछ समझ नहीं सकी। अपने घर में रहते हुए पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ था, क्योंकि ऐसा मंजर मेरी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं दिल ही दिल में उस शख्स को देखकर खौफजदा होने लगी। फिर जल्दी से खिड़की बंद करके वापस अम्मा के साथ आकर लेट गई। आखिर वो अजनबी शख्स इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या अमल कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। ऊपर से उसके काले कपड़ों ने और भी मुझे खौफजदा कर दिया। दूसरी सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा दिमाग कुछ भारी था। शायद रात की सोचों ने मेरी नींद सही से पूरी न होने दी।
जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अम्मा किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि जल्दी से मुँह हाथ धो लो, मैंने उस ट्रे में नाश्ता रख दिया है, तुम ये नाश्ता ले जाकर उस किराएदार को दे आना, जब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। मैं भी नींद के नशे में थी, इसलिए अम्मा की बात पर मुंह खोलकर उन्हें देख रही थी कि वो क्या कह रही हैं। भला मैं क्यों उस किराएदार के घर जाने लगी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उस अजनबी शख्स के पास जाने की, अब खुद ही हमदर्दियाँ करती फिरें। अम्मा मेरी बात सुनकर घबराने लगी और कहने लगी कि अच्छा रहने दो, मैं खुद ही देकर आ जाऊंगी। मुझे उसका वो अमल याद आ रहा था जो वो आधी रात को कब्रिस्तान में कर रहा था। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया और फिर घर की सफाई करने लगी। अम्मा मुझे कहने लगी कि मैं ज़रा शमशाद के घर जा रही हूँ, कुछ दिन से उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत मालूम करके आती हूँ। हाँ, अगर वो किराएदार बर्तन देने नीचे आए तो तुम उससे बर्तन ले लेना, ताकि एक ही बार सारे बर्तन धुल जाएं। फिर अम्मा मुझे ये हिदायत देकर खुद चली गई। अब मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और घर के कामकाज निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजा। अभी मैं दरवाज़ा खोलकर जाने ही वाली थी कि अचानक वो काले कपड़ों में मलबूस किराएदार दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसके हाथ में वही नाश्ते की ट्रे थी जो अब खाली थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया। मैं उससे कहने लगी कि आपको तमीज़ होनी चाहिए, जो बिला वजह ही मुंह उठाकर यूं घर में घुस आए हैं। मेरी काली आंखों में उसके लिए बेपनाह गुस्सा था। वो मुझे यूं गुस्से में देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर कहने लगा कि आपके दीदार की तड़प ने मुझे यूं अंदर आने पर मजबूर किया है। इतने दिन से आपका दीदार करना चाहता था। जब पहली बार आपकी आवाज़ सुनी तो आप पर आशिक हो गया था। उसकी इस छिछोरी बात ने तो जैसे सरता पैर मुझे जलाकर राख कर दिया। मैं गुस्से से चीखने लगी कि ओह, तो आप अम्मा के सामने नेक बनने का ड्रामा कर रहे थे। इसका मतलब है कि आपकी इस घर में आने के बाद मुझ पर नीयत खराब हो गई थी। लेकिन याद रखिएगा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आपने मुझसे कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो मैं आपकी जान ले लूँगी। वो मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी इतनी ज़ोर से हंसने की वजह मुझे समझ में नहीं आई। मैं कुछ देर हैरत से उसे देखने लगी। फिर वो मुझे कहने लगा कि जितनी तुम ऊपर से हसीन लगती हो, गुस्से में तो तुम और भी जाना खूबसूरत लगती हो। और जब तुम उस खिड़की से झांकती थी, मैं वहीं दरख्त पर बैठा हुआ तुम्हें यूं ही देखा करता था। लेकिन तुमने उस खिड़की से झांकना ही छोड़ दिया, इसलिए मजबूरन मुझे इस घर में किराएदार बनकर आना पड़ा, ताकि रोज़ाना तुम्हारे हुस्न का दीदार कर सकूं। उसकी उलझी हुई बातें मेरे सर से गुजर रही थी। मैं हैरत से सोचने लगी कि दरख्त पर बैठा हुआ ये क्या कर रहा है। मेरी हैरान शक्ल देखकर वो मेरे नज़दीक आया और कहने लगा, हैरान मत हो प्यारी शहजादी, मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर जिनज़ादा हूँ। मेरा नाम मरहम है। मैं वहाँ कब्रिस्तान के पास एक बरगद के दरख्त पर रहता हूँ। उस पुराने कब्रिस्तान में अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए यहाँ पर एक अमल करने आया था। लेकिन जैसे ही बरगद के दरख्त पर रहने लगा, मुझे खिड़की से तुम्हारी सूरत नजर आई। यकीन करो, तुम्हारी प्यारी सूरत और इन काली आंखों को देखकर मैं अपना दिल दे बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की दूर से इतनी खूबसूरत नजर आती है, पास से देखने पर वो कैसी होगी। तुम अक्सर खिड़की से मुझे झांकती नजर आती, लेकिन कुछ अरसे से तुम दिखाई नहीं दे रही थी। शायद घर में कामकाज में मसरूफ रहती होगी, इसीलिए मैं सोचने लगा कि अब तुम्हारा दीदार करना तो बस में नहीं, क्यों ना तुम्हारे उस खाली घर में रिहाइश इख्तियार करके हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा किराएदार बन जाता हूँ। इस तरह रोज़ाना ही तुम्हारा दीदार कर सकूँगा। जब पहली बार तुम्हारे दरवाजे पर आया था तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तुम्हारे सामने आने का मुंतज़िर था, लेकिन शायद तुम किसी अजनबी इंसान के सामने नहीं आती थी, तो मुझे तुम्हारी ये अदा और भी अच्छी लगी। अब मैं इतने दिन से किराए पर रह रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे अपना दीदार नहीं करवाया, इसलिए मजबूरन मुझे यूं अंदर आना पड़ा। वो किराएदार हकीकत में इंसान नहीं था, बल्कि वो एक जिन जात था जो मुझे और अम्मा को धोखा देकर इंसान बनकर उस घर में आया। वो न जाने कितने दिन पहले मुझ पर नज़र रख चुका था और मुझे आज अपनी हकीकत बता रहा था। अब मुझे समझ में आई कि वो रात को कब्रिस्तान में भरा क्यों गया था और हर वक्त काले रंग के कपड़े क्यों पहन कर रखता।
خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑی تھی۔ پھر میں اسے اٹکتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم پہلے ہی ماں بیٹی اپنے حالات سے پریشان ہیں، اور تمہاری باتیں سن کر تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤں۔ اماں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ تم ایک جن زاد ہو تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی، اور محلے والوں کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں ایک انسان نہیں بلکہ جن زاد رہتا ہے، تو سوچو ہمارے محلے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ اس لیے مہربانی کرو اور یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ۔ میری یہ بات سن کر وہ جن زاد کہنے لگا کہ میری یہاں موجودگی سے تمہیں یا تمہاری ماں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور محلے والوں کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ ویسے بھی میں یہاں صرف تمہاری خاطر آیا ہوں۔ اگر تم بھی محبت کا مجھ سے اقرار کر لو تو شاید میرے دل کو سکون آ جائے، کیونکہ میں تمہیں دل سے بہت چاہنے لگا ہوں۔ میں یہاں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسی برگد کے پیڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا، جب تک میں یہی تمہاری اوپر والی منزل پر رہوں گا۔ لیکن یہ باتیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، یہ تم کسی کے آگے نہیں کرو گی، ورنہ لوگ مجھے ہیلے بہانے کر کے پریشان کریں گے۔ لیکن میری طاقت اتنی ہے کہ لوگوں کی مجھ پر ایک نہیں چلے گی، اس لیے اپنی زبان بند رکھنا، اور میں جلدی تمہارے منہ سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن زادہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسے حالات و واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اکثر ہی اس گھر میں اکیلی رہتی، لیکن آج سے پہلے مجھے کبھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ اب میں دل ہی دل میں جلدی سے اماں کے آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں واپس آ گئی، اور اس نے جب دیکھا کہ میں اپنے گھر کی صفائی بھی نہیں کی میں نے، اور برتن بھی ایسے ہی پڑے ہیں، تو مجھے کہنے لگی کہ خیریت تو ہے ملائکہ، آج تم نے گھر صاف کیا نہ ہی کام کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ پھر میری روتی شکل اماں نے دیکھ لی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر میں اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو چھپا کر اماں سے کہنے لگی کہ نہیں اماں، مجھے تو بس سر میں درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں بستر پر لیٹی تھی۔ میں اماں کو حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں نے اس حقیقت جان کر بہت پریشان ہو جانا ہے۔ ویسے بھی عرصے بعد ایک کرایہ دار آ کر گھر پر رہ رہا تھا، جس نے اماں کو ایک موٹی رقم بھی تھما دی تھی۔ اماں کی مالی پریشانی ساری اڑن چھو ہو گئی۔ پھر میں اماں کے ساتھ مل کر دھیرے دھیرے گھر کے کام کاج سمیٹنے لگی، لیکن خوف زدہ بھی تھی کہ کہیں وہ جن ذات پھر سے دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ پھر میں آدھی رات کو سو رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی، ملائکہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان آوازوں سے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں خوف زدہ سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ میں جلا کر سوتی، لیکن نہ جانے کس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ وہ آوازیں دھیمی دھیمی میرے کانوں میں اب تک آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور گھر کے صحن میں آ گئی۔ تبھی اچانک میری نظر اس کھلی کھڑکی پر پڑی جو قبرستان کی طرف کھلتی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو یہ کھڑکی اپنے ہاتھوں سے خود بند کی تھی، اور پھر کمرے میں سونے کے لیے گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے جن زاد نے یہ کھڑکی کھولی تھی۔ پھر جیسے ہی میں وہاں کھڑکی بند کرنے کے لیے اس کے پاس گئی، تو اچانک وہ کھڑکی کے باہر جن زاد میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں، لیکن تم موقع آنے کا نام نہیں لیتی، چلو میرے ساتھ چلو، وہاں برگد کے پیڑ کے نیچے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے ایک بڑی سی کالی چادر اپنے چہرے کے گرد لپیٹی تھی، جس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر تو میری جان نکل گئی۔ میں اسے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، یہ تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا میں آدھی رات کو اس قبرستان میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیسا ڈر خوف ہے جبکہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟
भला इसमें डरने की क्या जरूरत है? चलो आओ देखो, मेरी बात मानो वरना सारी जिंदगी यूं ही तंग करता रहूंगा। मैं जान गई थी कि वो किस कदर जिद्दी जिनजाद है। तभी उसने अचानक ज़ेरे लब कुछ अमल किया और मुझ पर पड़कर फूंक दिया। अब मैं उसके ज़ेरे असर आ चुकी थी। फिर मैंने खुद को दरवाजे के पास जाता महसूस किया और दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर आ गई। अब मैं उस जिन जात के बराबर चल रही थी। वो मुझे लेकर जाता हुआ उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया जो उसका ठिकाना था। वो ना जाने मुझसे क्या क्या बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सुन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किसके साथ हूँ और कहाँ पर हूँ। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद उसने मुझे घर छोड़ा और मैं चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे अपना दिमाग बहुत भारी महसूस हो रहा था। फिर मुझे रात की बात याद आने लगी जब वो जिनजात मुझे अपने साथ आने पर मजबूर कर रहा था। मैंने अपनी आंखें मस ली। जैसे ही अम्मा के पास गई तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि रात को दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया था? अभी मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि पूरा दरवाज़ा खुला है। कहीं रात को कोई चोर वगैरह तो नहीं आया था? मैं अम्मा की बात सुनकर उन्हें कहने लगी कि अम्मा, किसी चोर ने आकर भला यहाँ करना ही क्या है? यहाँ कौन सा कीमती दौलत या जेवरात दबे हैं? फिर अम्मा मुझे देखकर कहने लगी कि मेरी सबसे कीमती दौलत तो तुम हो। अल्लाह न करे कि कोई बुरी नीयत से हमारे घर में आ घुसे और तुम पर नीयत खराब कर ले। अम्मा की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि जिसने घर में घुसना था वो तो कब का घुस चुका है और उसने अपनी नीयत भी मुझ पर खराब कर ली है। और अम्मा को इस बारे में पता ही नहीं है कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझे यूं खामोश देखकर अम्मा कहने लगी कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा रहता है। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? फिर मैं अम्मा को कहने लगी कि नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हुआ है बस, और कुछ नहीं। अब जब मैं चुपचाप नाश्ता कर रही थी, अम्मा कहने लगी कि मैं आराम के पास जा रही हूँ, उसने काफ़ी दिन से घर की सफाई नहीं की है। अच्छा है, मैं वहाँ की सफाई करके आ जाऊँगी। मैं अम्मा को इस कदम से रोकना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ न दिया। मैं खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। अब मैं कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी थी। घर का काम काज भी करने को दिल न करता। दिमाग में हर वक्त उसी जिनजात के ख्यालात आते रहते। थोड़ी देर बाद जब अम्मा नीचे आई तो उनके हाथ में बड़ा सा शॉपर था। फिर अम्मा मेरे पास आकर कहने लगी कि देखो तो सही, अरम बेटे ने मुझे कितने खूबसूरत कीमती सूट दिए हैं, ये देखो तुम। वो कई सूट थे जो इंतहाई खूबसूरत थे और रेशमी थे। उन पर खूबसूरत नगीनों से काम किया था और उससे लगता था कि जैसे चांदी और सोने के तारों से वो सूट बने। मेरा दिल धक से रह गया। मैं सोचने लगी कि यकीनन वो जिनजात ये कीमती सूट किसी महंगी जगह से लेकर आया होगा। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, क्या ज़रूरत है आपको उस अजनबी शख्स से इतना बेतकल्लुफ़ होने की? आज वो सूट उठाकर दे रहा है, कल को वो बदले में आपकी बेटी का हाथ मांगेगा, तो क्या आप मेरा हाथ उस अजनबी के हाथों में थमा देंगी? माँ मेरी बात सुनकर लापरवाही से कहने लगी कि तो इसमें क्या बुराई है? वो अच्छा खासा दिखने वाला अमीर शख्स है। मैं तो तुम्हारे लिए किसी ऐसे ही शख्स का ख्वाब देखती आई हूँ। अगर उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैं उसे घर दामाद बना लूँगी। फिर वो हमेशा के लिए हमारे घर में रहने लग जाएगा। देखो तो सही किस कदर मेहरबान दिल का मालिक है। वक्त से पहले ही ढेरों रुपए मेरे हाथ में थमा कर दे जाता है कि ये लीजिए खालाजान, ये घर का किराया है। मैं उस जिनजात की चालबाजी को समझ रही थी कि वो कैसे अम्मा को उल्लू बना रहा था और उन्हें अपना गर्विदा कर रहा था। मैं दिल ही दिल में मरने को थी खौफ से। मैं सोचने लगी कि अगर उसने अपनी ताकतों से अम्मा के दिमाग को सुन करके इस बात पर मजबूर कर दिया कि मेरी शादी उस जिनजात से कर दी जाए, तो अम्मा तो शायद 1 मिनट की देर न लगाए और मेरा उसी से निकाह पढ़वा देगी। अब मेरा उठना बैठना काम काज करना सब छूट गया। मैं दिन रात उसी के ख्यालात के ज़ेरे असर रहने लगी और जब दिल चाहता रातों को वो आवाज़ देकर मुझे उठाता। फिर मेरा दिमाग सुन करके मुझे अपने साथ लेकर चला जाता। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे साथ लेकर जाता और कितनी देर अपने सामने बिठा कर रखता, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, अक्सर इस सुबह के वक्त जब मैं उठती तो अम्मा को घर का दरवाज़ा खुला मिलता। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता
मैं सोचती कि अम्मा को हकीकत से आगाह कर दूं कि जिसको वो इतना नेक और मेहरबान दिल इंसान समझ रही हैं, हकीकत में वो एक चालबाज जिनजाद है, जिसे सिर्फ मुझे जो हासिल करने के लिए ये सारा खेल रचाया रखा है। उस दिन मैं काफ़ी दिन से समीना बाजी के पास भी नहीं गई थी। फिर एक दिन अम्मा उनका पैगाम लेकर आई कि वो तुम्हें अपने पास बुला रही है। फिर उस दिन मैंने अच्छे से नकाब किया और समीना बाजी के घर चली गई। समीना बाजी ने जब मेरी हालत देखी तो हैरान रह गई और मुझसे कहने लगी कि मलाइका, ये तुमने क्या हालत कर ली है? तुम्हारी आंखों के गिर्द इतने हल्के क्यों हो गए? क्या कोई घर की परेशानी है? तुम्हारी रंगत भी पीली जर्द हो गई है और आंखें भी इतनी सुर्ख हो रही हैं। तुम तो कहीं से भी पहले वाली मलाइका नहीं लग रही। मेरे लिए समीना बाजी की इतनी हमदर्दी भी काफ़ी थी। मैं उनकी हमदर्दी पाकर बुरी तरह से फूट कर रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर वो बेहद परेशान हो गई। फिर मुझे कहने लगी कि सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? आखिर क्यों तुम मुझे इतनी उदास नजर आ रही हो? क्या तुम्हें किसी शख्स ने परेशान कर रखा है? फिर मैं समीना बाजी को कहने लगी कि नहीं समीना बाजी, मुझे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिनजाद ने परेशान कर रखा है। वो अम्मा को और मुझे धोखा देकर हमारे घर में आ घुसा है और मुझे मुख्तलिफ तरीकों से अब तंग करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारी वजह से इस घर में आकर रह रहा हूँ। समीना बाजी हैरत से ये बातें सुन रही थी। फिर मुझे कहने लगी कि तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि तुम जो कुछ भी अपने मुंह से कह रही हो वो सब सच है। तभी मैं कहूँ कि खाला रुबीना आजकल इतनी खुशबाश क्यों नजर आ रही हैं? उन्हें शायद अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आ रही। फिर मैं समीना बाजी को कहने लगी कि नहीं समीना बाजी, अम्मा को उस किराएदार के बारे में पता नहीं है। वो एक इंसान नहीं बल्कि जिनजाद है। फिर समीना बाजी मुझे तसल्लियाँ देने लगी और कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, हमारे इलाके से दूर एक बस्ती है जहाँ एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। तुम कल मेरे साथ उस आमिल के पास चलो और अपनी परेशानी से उन्हें आगाह करो। मुझे यकीन है वो अमिल तुम्हें इस सारी परेशानियों से निकाल लेगा और तुम्हारी उस खौफनाक जिनजात से जान छुड़वा देगा। समीना बाजी की बातों से मुझे बहुत ढारस मिली, लेकिन दिल ही दिल में मैं डर भी रही थी कि कहीं वो जिनजात मेरी सारी बातें न सुन रहा हो। फिर मैं खामोशी से घर आ गई। अब मुझे कल का इंतज़ार था। फिर दूसरे दिन मैंने अम्मा को कहा कि आज आप घर पर रुकें क्योंकि मुझे समीना बाजी के साथ अपनी दोस्त के घर जाना है। अम्मा मुझे कहने लगी कि शुक्र है तुम्हारा दिल भी कहीं जाने का किया। अच्छा है थोड़ी देर घूम फिर कर आ जाओ, वरना तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर तो मैं वैसे ही परेशान रहने लगी हूँ। अब मैं समीना बाजी के घर पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे ये डर खाए जा रहा था कि कहीं वो जिनजाद मेरा पीछा न कर रहा हो। फिर हम दोनों ही पैदल उस आमिल के आस्थाने पर पहुँच चुके थे। वहाँ बहुत सारी औरतें आई थी। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी जब अचानक मेरी नज़र वहाँ बैठी एक औरत पर पड़ी जो बड़ी बुरी हालत में वहाँ बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे और वह अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ तोड़ कर खा रही थी। उसे देखकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। फिर समीना बाजी ने मुझे इशारा किया। मेरी बारी आ गई थी, इसीलिए अब मैं उनके साथ अंदर जा रही थी। अंदर का माहौल बड़ा ही डरावना था क्योंकि उस आस्थाने में अंधेरा छाया था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस आमिल पर पड़ी तो मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो आमिल इंतहाई बुजुर्ग और बारिश शख्स था। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि अच्छा भला इंसान देखकर मुतासिर हो जाए। फिर समीना बाजी उस आमिल से कहने लगी कि बाबा जी, ये बच्ची बड़ी परेशान है और अपने हालात से भी परेशान है। इसकी मदद कीजिए, इसका इलाज कर दें। आमिल बाबा की बूढ़ी नज़रों ने मुझे देखा। फिर मुझे कहने लगे कि तुम्हारी सुर्ख आंखें बता रही हैं कि तुम किसी जिन्नात के ज़ेरे असर हो। तुम मेरे पास आई हो, उसको ये बात पता चल गई है। अब वो शदीद गुस्से में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि कब तुम्हें मज़ा चिखा सके। आमिल बाबा ये बताकर मुझे खौफजदा कर रहे थे। फिर मैं रोने लगी। उनसे कहने लगी कि बाबा जी, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं बेसहारा लड़की हूँ। मेरे सर पर तो न बाप का साया है न किसी भाई का हाथ है। हम तो सिर्फ 2 माँ बेटी हैं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ना जाने मेरी माँ धक्के खाकर कहाँ इलाज करवाती फिरेगी। फिर आमिल बाबा ने अपना शफीक हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारा ऐसा रूहानी इलाज करूँगा कि वो ताकतवर जिन्नात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
اور ویسے بھی وہ ایک مسلمان جنات ہے، اگر اسے عمل کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں تو اسے ضرور سمجھاؤں گا، کیونکہ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ کسی انسان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں لیکن عاشق ضرور ہو جاتے ہیں۔ تم ایک نیک لڑکی ہو لیکن پھر بھی وہ جن ذات تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے تمہاری صورت اچھی لگی ہو یا تمہاری کسی بات سے متاثر ہو گیا ہو۔ یہ تعویذ میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں، اسے تم ہر وقت اپنے گلے میں پہن کر رکھنا، اور اس بوتل میں پانی ہے، تم اسے پی کر اپنی طبیعت میں بہتر محسوس کرو گی۔ میں عامل بابا کی بات سن کر کافی مطمئن ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ نیک عامل بابا ضرور میری مدد کر سکتا ہے۔ اب میں گھر آ گئی۔ اماں نے میرے گلے میں تعویذ دیکھا تو حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ یہ تم نے تعویذ گلے میں کیوں پہنا ہے؟ میں نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اماں میرے سر میں درد ہوتا ہے، اسی لیے تعویذ بنوایا ہے۔ اماں میری بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ پھر ایک دن جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو مجھے اپنے کانوں میں اسی جن ذات کی آوازیں آنے لگی جو مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں خود بخود اٹھی اور اس کھڑکی تک پہنچ گئی جو آج بھی کھلی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پر کھڑی ہوئی، وہاں پر کھڑا جن ذات اداسی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں نے تو تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانے کا سوچا تھا، لیکن تم اس عامل کے ساتھ مل کر میری طاقتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دیکھو، میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا ہے اور تمہیں اپنا بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کو امر کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اگر میری طاقتوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس کا خوفناک لہجہ مجھے ڈرا رہا تھا، لیکن میں نے بھی ہمت کر کے اسے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک مسلمان جنات ہو اور تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے میری بات مانو۔ جس کام کی غرض سے تم اس برگد کے پیڑ کے پاس آ کر رہنے لگے تھے وہ کرو اور یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ۔ میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو، کیونکہ میں نے کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ بھی کبھی برا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو جبھی بدلے میں اسے تکلیفیں ملتی ہیں۔ میرا مضبوط لہجہ سن کر وہ حیران تھا، پھر زیر لب کچھ پڑھ کر عمل کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے وہ عمل کیا اور وہ مجھ پر پھونکنے لگا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ آج اس عمل نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اب وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے وہاں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے میری ساری طاقتیں اس عامل بابا کے عمل نے مجھ سے چھین لی ہیں۔ تم اسے منع کرو کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے میری اتنی محنت سے حاصل کی گئی طاقتیں ضائع ہو جائیں۔ میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، لیکن جو عمل یہاں کرنے آیا ہوں وہ میں کر کے ہی جاؤں گا، اس لیے تمہیں جب تک عامل بابا کو اسی طرح کر کے روکنا ہوگا۔ اب میں تمہارا پیچھا بھی نہیں کروں گا، لیکن ہاں اپنی محبت کا تمہیں قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے اوپر والے کمرے میں ایک چھوٹے سے صندوق میں نے ایک قیمتی تحفہ تمہارے لیے رکھا ہے۔ آج میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اس قبرستان میں رہ رہا ہوں۔ میری نظر صرف تمہارے دیدار کو ترسے گی، اس لیے کبھی کبھی اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جانا تاکہ میں تمہیں دیکھ کر اپنی محبت کی پیاس کو بجھا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ جن ذات میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں خوش تھی کہ آج اس جن ذات کے عمل نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عامل بابا کا دم اس جن ذات سے زیادہ طاقتور تھا۔ اب میں مطمئن ہو کر گھر رہنے لگی۔ پھر ایک دن وہ جن ذات خاموشی سے ہماری زندگی سے چلا گیا۔ اماں اس جن ذات کے جانے سے بہت اداس تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ مہربان کرایہ دار نہ جانے کیوں خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اماں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ جن ذات حقیقت میں میرے لیے کتنی پریشانی لے کر ہماری زندگی میں داخل ہوا تھا۔ میں اس کے جانے سے مطمئن تھی۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ شمشاد کے دور کے رشتہ دار اس علاقے میں آ کر بسنے والے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تم اپنا گھر کرائے پر دے دینا۔ چلو آؤ میرے ساتھ ذرا اوپر والی منزل کی صفائی کر لیتے ہیں، دونوں ماں بیٹی مل کر۔ میں نے اماں کی بات پر سر ہلایا اور اوپر والی منزل پر چلی آئی وہاں کی صفائی کے لیے۔ میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر وہاں رکھی ایک صندوق پر پڑی۔ تبھی میرے ذہن میں اس جن ذات کی بات یاد آئی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس صندوق میں میرے لیے وہ کوئی تحفہ چھوڑ کر گیا ہے۔ میں اسے کھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر مجھے تجسس تھا کہ آخر وہ میرے لیے ایسا کیا چھوڑ کر گیا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے اس صندوق کو کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر ایک خوبصورت انگوٹھی رکھی تھی
उस अंगूठी की चमक बता रही थी कि वो किस कदर कीमती थी। उसमें शायद कोई हीरा या कीमती नगीना जुड़ा हुआ था। मैंने अम्मा से नज़रें बचाकर उस अंगूठी को संभाल कर अपने पास रख लिया। ये तो मुझे यकीन था कि अब वो जिनजात मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी। मैं हरगिज़ उसे अपनी ज़िंदगी में यूं दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। फिर ऊपर वाली मंजिल पर शमशाद खाला के रिश्तेदार आकर रहने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी थे, उनका एक खूबसूरत सा बच्चा भी था। अब हम खुश थे कि इतने अच्छे किराएदार मिल गए थे। एक दिन मैं आधी रात को उठी तो अचानक मेरी नज़र घर की खुली हुई खिड़की पर जा पड़ी। आज इतने दिन बाद ये खिड़की खुली हुई थी। मैं उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही वहाँ पर गई तो अचानक वही जिनजात मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरी आंखें हैरत से फट गई। मुझे यूँ हैरान देखकर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें खौफजदा करने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि आज मैं ये कब्रिस्तान हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना अमल पूरा कर लिया है। अब मेरी ताकतों में मज़ीद इजाफा हो चुका है, लेकिन क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी से परेशान थी तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता था और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर उसने एक हसरत भरी नज़र से मुझे देखा और मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हैरान परेशान वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर आज मुझे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि दिल की कैफियत अजीब सी थी। मैं सोचने लगी कि जाने अनजाने में कहीं उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठी। ये सोचकर मैं बेचैन बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।